Hi everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the daily market analysis. Well, inside bar candlesticks on the charts, and in today's episode, हम discuss करने वाले हैं Nifty and Bank Nifty का outlook for Friday, that's June 21st, 2024. Towards the end of the video, कुछ stocks को भी discuss करेंगे जो definitely आपकी watch list पर होने चाहिए. So वीडियो में आगे बढ़ने से पहले make sure that you hit that like button and do subscribe to my channel. नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा so that you never miss an update. चलिए without any further ado शुरू करते हैं आज का वीडियो by taking a look at Nifty 50's daily time frame. In today's trading session हमें Nifty 50 में एक इनसाइड बार सेटअप यहाँ पर देखने को मिला है. अगर हम इस रेंज को मार्क करें then it happens to be across the levels of 23,664 to 23,412 which you can clearly spot over here. अब इनसाइड बार सेटअप का सिंपली ये मीनिंग है दैट आज के दिन की जो कैंडलस्टिक है वो रजिस्टर हुई है विद इन द रेंज ऑफ द प्रीवियस डे कैंडलस्टिक. एंड आप देख सकते हैं दैट टिल द टाइम निफ्टी इज प्लेस्ड विद इन दिस रेंज हम यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो in the last video, we discussed that we have an upward sloping trend line over here, which might as well act as a immediate support for the index. And given the fact that the index is placed within a range, तो हम यहाँ पर एक डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं if Nifty breaks out the upper band at 23,664, which would signal a continuation of the positive momentum. But on the flip side, अगर हमें 23,412 के लेवल्स का कोई भी ब्रेकडाउन देखने को यहाँ पर मिलता है, it would simply mean that हमें Nifty 50 में एक रिट्रेसमेंट मूव यहाँ पर ओपन अप करते हुए देखने को मिल सकता है. Initially towards this sloping trend line placed at 23,325, which might as well be followed by a test of the 20 EMA on the daily chart. Because अगर आप यहाँ पर notice करेंगे, so no doubt that Nifty 50 has moved towards the upper end, but looking at these candlesticks, it looks a little exhaustive in nature. So it might as well be possible that Nifty 50 में a retracement move might be due. So here the chart is suggesting to be a little cautious at the highs. आर्ली चार्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको काफी क्लियरली देखने को मिलेगा दैट निफ्टी 50 अपने इसी ट्रेडिंग रेंज में प्लेस्ड है ओवर द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस. एंड यहाँ पर ऑन द अपर साइड हम 23,630 के लेवल को कंसिडर कर सकते हैं एज अ टफ रेजिस्टेंस. ऑल्सो आप देख सकते हैं दैट इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन निफ्टी 50 ने 23,630 के लेवल को अप्रोच किया, बट फ्रॉम द सेम हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली है, which in turn makes this level as a strong hurdle for the index. Over here, it's also interesting to note that Nifty 50 अपने 20 and 40 EMA levels के ऊपर placed है, and आप देख सकते हैं that हमें from this EMA zone instances of support देखने को मिल रहे हैं. So we can consider the level of 23,528 followed by 23,454 as immediate supports for the index as well. अब यहाँ पर अगर हमें कोई भी ब्रेकआउट मूव देखने को मिलता है on a sustainable basis, जिसके लिए आप एक शॉर्टर टाइम फ्रेम को भी चेक कर सकते हैं such as the 15-minute chart, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं that Nifty 50 में एक पॉजिटिव मूव कंटिन्यू कर सकता है on the higher side. On the flip side, अगर हमें यहाँ पर इन EMA लेवल्स का along with the lower band यानी कि 23,412 का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो ऑन एन इमीडिएट बेसिस हम यहाँ पर लोअर लेवल्स का टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ 23,325 फॉलोड बाय 23,275 ऑन एन इंट्राडे बेसिस इटसेल्फ. फर्दर हम यहाँ पर इन पॉसिबिलिटीज को इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज निफ्टी 50 इज प्लेस्ड विद इन एन इनसाइड बार, एंड जब भी हमें ऐसे नैरो रेंज कंसोलिडेशन सेटअप्स देखने को मिलते हैं देन इट्स रियली लाइकली दैट ऑन अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है which might as well give us the opportunity to capitalize upon. Well, I hope it's clear, and इसी के साथ let's move to Bank Nifty. On the daily chart of Bank Nifty आप देख सकते हैं that in yesterday's trading session हमें इस inside bar का Bank Nifty में एक breakout देखने को मिला है at the levels of 50,667. Further, अगर हम आज के trading session की यहाँ पर बात करें तो we have seen an inside bar on the charts of Bank Nifty as well, और इस inside bar की range काफी wide है
from the levels of 50,441 to the levels of 51,957, which is approximately 1,500 points. अब हम यहाँ पर इस वाइड रेंज के चलते बैंक निफ्टी में एक साइडवेज कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड फर्दर इफ एट ऑल हमें कोई भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है at the levels of 51,957, which otherwise is a resistance for Bank Nifty because in yesterday's trading session आप देख सकते हैं from the same level Bank Nifty में rejection देखने को मिला था. So if at all we do see any breakout over here, तो हम यहाँ पर इसी positive momentum का एक continuation expect कर सकते हैं on the higher side on the daily chart of the index. But let's say that on the flip side, हमें from the same resistance level एक रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, देन बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस साइडवेज मूवमेंट टू कंटिन्यू, जिसके चलते द वॉलेटिलिटी माइट एज वेल बी एलिवेटेड फॉर बैंक निफ्टी. ऑल्सो अगर हम लोअर एंड की यहाँ पर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल हम यहाँ 51,000 के लेवल को कंसिडर कर सकते हैं, फॉलोड बाय द ब्रेकआउट लेवल and the lower end of this particular inside bar itself, which means that the first level of support is at 51,000 and further एक zone हम यहाँ पर consider कर सकते हैं at 50,667 to 50,441. Hourly time frame की बात करें तो first of all Bank Nifty is placed above the 20 as well as the 40 EMA on the hourly chart, and साथ ही towards the end of the trading session Bank Nifty was placed somewhere around the levels of 51,760. अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था that हमारे पास there's a resistance level on the higher side at 51,957. So first of all अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है 51,830 के लेवल को, तो हम यहाँ पर इमीडिएटली 51,957 के लेवल्स का टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और अगर हमें फ्रॉम द सेम लेवल्स कोई भी रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है तो इसके चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट बैंक निफ्टी में एक टेस्ट ऑफ द 20 EMA हमें देखने को मिल सकता है, which is somewhere around the levels of 51,200 itself. If this persists on the downside, then the second reference level will be the level of 51,000, जैसे कि हमने चार्ट पर डिस्कस किया था on the daily time frame. But on the flip side, let's say that अगर हमें यहाँ पर इस particular resistance level का एक strong breakout देखने को मिलता है, for which you can also check the 15 minutes chart. So if the breakout is on a sustainable basis, हम यहाँ पर expect कर सकते हैं that ये positive momentum Bank Nifty में continue कर सकता है, which might give an added opportunity to the intraday traders. But for the ones holding Bank Nifty on a positional basis, it would be best to trail the gains on the positive side. Well, here I hope the setup is clear. And now let's move to stocks. So the first one on the list is IIFL Securities on the daily time frame, जहां पर आप देख सकते हैं that stock में हमें एक काफी strong positive momentum देखने को मिला था, which is now getting followed by a consolidation in a narrow range over here. आप यहाँ पर ये भी नोटिस कर सकते हैं that stock अपने crucial EMA levels के ऊपर placed है, and as of now, just like we discussed, it is in a consolidation phase. अगर हमें इस कंसोलिडेशन का एट द लेवल्स ऑफ 222 कोई भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट ये पॉजिटिव मूव स्टॉक में कंटिन्यू कर सकता है, जिसके चलते एक एक्सटेंडेड अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है. बट डू रिमेंबर दैट दिस व्यू विल ओनली होल्ड ट्रू इफ द स्टॉक ब्रेक्स अबव द लेवल ऑफ 222 on the daily time frame on a sustainable basis. On the flip side, अगर इस पर्टिकुलर रेंज की लोअर बाउंड्री ब्रीच होती है तो हम इस सेटअप को फर्दर कंसिडर नहीं करेंगे एंड विल कीप रिव्यूइंग इट फॉर अ लेटर अपॉर्चुनिटी. द सेकेंड ऑन द लिस्ट इज इंडियन होटल्स ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जहां पर आप देख सकते हैं दैट हमें स्टॉक के चार्ट पर एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिली है समवेयर अराउंड द लेवल्स ऑफ अबाउट 530 एंड देयर आफ्टर आप देख सकते हैं दैट स्टॉक में हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है. एंड इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन एक ब्रेकआउट स्टॉक ने यहाँ पर दिया है एट द लेवल्स ऑफ 622.50. Now over here, if this particular stock continues to hold above the level of 622.50, तो हमें यहाँ पर एक continuation of this up move देखने को मिल सकता है. But in any case, अगर यहाँ पर the stock slips below the same, तो एक retracement move pan out कर सकता है
जिसके चलते हमें अप्रोक्सीमेटली 595 तक के लेवल्स का एक टेस्ट देखने को मिल सकता है, सो बी वॉचफुल ऑफ द सेम एज वेल। द नेक्स्ट वन इज IDFC फर्स्ट बैंक ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट स्टॉक में हमें एक पोटेंशियल हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग दिस पैटर्न एज अ पोटेंशियल पैटर्न, बिकॉज ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। नाउ दिस पैटर्न विल गेट ट्रिगर्ड अबव द लेवल्स ऑफ 86.10, एंड अगर ये स्टॉक 86.10 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पर 90.50 तक के लेवल्स का एक मूव ऑन एन इमीडिएट बेसिस देखने को मिल सकता है, which might as well act up as the first hurdle for the stock. Further, अगर स्टॉक इस हर्डल को भी यहाँ पर क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पर फाइनली 94.70 तक के लेवल्स का एक टेस्ट देखने को मिल सकता है। बट डू रिमेंबर दैट दिस पैटर्न विल ओनली गेट ट्रिगर्ड अबव द लेवल्स ऑफ 86.70। एंड विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे, एंड आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.